Good morning, sixth class. Good morning, sixth class. Good to see you, children. Yes, please settle down. Daffodil children who are standing, lotus section children who are standing, rose section. Please sit down. Today there is no module with you. Look straight. Only notebook should be with you and look straight. Okay? Nothing to note down till now. Okay, I will be asking you when to start writing. Everybody look straight. I have drawn so many figures over here. आपको नहीं draw करनी है. You don't have to draw it. Okay? Just look here and I'm going to ask you something. Yes. Can you see? I have drawn so many figures, so many angles over here. You have already read about that. Lotus section children, look straight. सब लोग सीधे बैठोगे. Very good. You can take out your notebook. Lotus section, I'm waiting for the children. Notebook should be in front of you so that you should be ready to write anything if I say you. Okay? अभी तो ये फिगर नहीं बनानी है. You don't have to draw these diagrams जो मैंने बनाए हैं. यहाँ पे angles बनाए हैं. ठीक है? Just listen to me. Look straight. Very good. I'll be calling you from each section. I'll be calling one child. First of all, row section, roll number 10. Please come, put on the mic and tell me how many acute angles you see in this figure. How many acute angles you see here? Silent, silent, all of you. Lotus section, daffodil, sunflower. Hanji bete, please tell me your name first. Row section, roll number 10 has come. Yes. Can you tell me, okay, first tell me what kind of angles you see here. Different type of angles are here. Okay? Can you tell me what type of angles are here? I want to write here. I want to make a list over here. Kis type ke angles are here? Can you tell me? Acute angle. Okay. I'm writing the name. Okay. Or? Reflex angles. Reflex angles होते हैं, but can you see on the board any? बीच में है, तो बताओगे कौन सा वो है reflex angle? Okay, चलो और बताओ. It's okay, आगे चलो. और reflex के अलावा और बताओ. Right angle, very good. और? Very good. Obtuse angle. Do you remember? Obtuse भी होते हैं. You remember this name? पता है आपको obtuse angle क्या होता है? You know it? Raise your hand. Yes? Yes, you know. Okay, sit down, beta. Thank you. Sit down. He told me there is an acute angle, right angle, obtuse angle, and he told there is a reflex angle also. Can you see any reflex angle over here? See, beta, whenever any angle is drawn on a paper, okay, whether in your book or in a worksheet, module, wherever you see the type of angles, you have to look for this sign. Look for this sign. ये जो आपको angles के बीच में representations दिख रही है ना, let me draw it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 angles are there. These representation of angle जो आपको जहाँ पे मैंने marking की है 1, 2, 3, 4, उस marking को देख के आपने angle को पहचानना है कि what type of angle is it. Okay, if I draw some angle over here, suppose मैं यहाँ पे draw करती हूँ, I am drawing over here angle 12, then you can tell me कि yes ma'am there is a reflex angle also. Now I can see, everybody can see here angle 12 जो दिखाई दे रहा है.
sorry, that is a reflex angle. Raise your hand. Do you see? Reflex angle is number 12. Raise your hand. Do you remember reflex angle क्या था? मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? ओके, आई एम ड्रॉइंग मोर नाउ. मैं यहाँ पे भी रिफ्लेक्स एंगल बना रही हूँ. क्या ये भी रिफ्लेक्स एंगल है? 13 नंबर. Raise your hand. Is it a reflex angle? Yes. Doubt क्यों हो रहे हैं आपको? Yes, be confident. Okay, बेटा. Hands down. See here. These are all reflex angles. Okay, 13 and 12. Others are acute angle, few are obtuse, and few are right angle. Okay. Sorry. Okay, let us see more. Just a minute. I'll just put on PPT for you. Yes, beta. Just a minute. Oh. Yes, beta. I was asking you. Everybody look straight. Let me put on video. Yes, I was asking you different type of angles. Okay, by counting, you can tell me कि acute angles are 4, obtuse angles are 3, right angles are 2. There were 2 only, and reflex angles were also 2. ठीक है? तो by counting, you have come to know कि in a group of things, जो हमने बहुत सारी group of angles बनाए थे, उनमें से how many were acute, how many were obtuse, and how many were right, and how many were reflex. So what is that which I am telling you? Counting करके. I am making a table over here. It means I am collecting a data of all the angles which we do. Okay, data means we are collecting an information. जो चीजें जो हमने फिगर्स इतनी सारी बनाई थी ग्रुप में, तो वी गॉट एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज फिगर्स कि हाउ मेनी यू कैन टेल इजीली टू अदर्स कि देवर एक्यूट इतने थे, ऑब्ट्यूज इतने थे, रिफ्लेक्स इतने थे, और ये राइट एंगल इतने थे. तो यू गॉट एन इंफॉर्मेशन. Okay, so whenever you get any kind of information from somebody, okay, it means you are collecting a data. Is it clear to you? किसी भी तरह की information. For example, in Lotus section, I asked the children who like red color, whose favorite color is red. Raise your hand, please. In Lotus section, जिनका red color favorite है. किसी का नहीं है? लोटस सेक्शन में किसी का नहीं है रेड कलर फेवरेट? ओके, पिंक कलर. ओके, रोज सेक्शन रेड कलर किसका फेवरेट है? हाथ खड़े करो. यस. ओके, गुड. आई कैन काउंट एंड सी हाउ मेनी आर देयर. ओके, पिंक कलर किनका फेवरेट है रोज सेक्शन? पिंक कलर वेरी गुड. ओके, डार्क लाइट कोई भी हो, ये नहीं सोचना कि डार्क है लाइट है. पिंक कलर इज पिंक कलर, राइट? Okay, very good. I can see more girls. Very good. Hands down. From sunflower section, बेटा you have to active participate actively. ठीक है, जो चीज मैं आपसे पूछूंगी you have to tell me. Okay, otherwise फिर you will also not enjoy doing it. Sunflower section, who have a blue color favorite?
सबने ब्लू यूनिफॉर्म पहनी हुई है, इट शुड बी योर फेवरेट कलर. नो, very few, very few. Okay, daffodil section, who have blue color favorite? Yeah, there are more. So I can compare. Okay, hands down, good. So I have done a comparison. In sunflower section, blue color was favorite for 1 or 2 children, but in daffodil section, more children were liking this blue color. ठीक है, मेरे को एक information मिल गई है from your yes beta, you want to say me anything? Daffodil section, first girl. Okay, all right. So I have gotten information. मेरे को एक information पता चल गई है आपसे कि आपकी रेज हैंड देख के और आपसे क्वेश्चन पूछ के मेरे को information पता चल गई है कि ब्लू कलर किनका फेवरेट है, रेड कलर किनका फेवरेट है, और कितने चिल्ड्रन डेफोडिल में सनफ्लावर से ज्यादा बच्चे जो है वो लाइक कर रहे हैं ब्लू कलर को. सो दिस इज एन information I have collected. Okay, so there are so many kind of informations we want to collect. So in real life also, you see, suppose we get an information of, look here, if I ask you, many children are there, suppose these names of children are written here, Raghav, Preeti, Amar, Fatima, Amita, so many children are there. ये सारे students हैं, ठीक है? These are the students. तो हमने information collect की. These are the students. These are all students. We got an information ki Raghav, which is your favorite fruit? He said banana. Preeti, what is your favorite fruit? She will say apple. Amar, what is your favorite fruit? Guava. That way we are asking the question and writing, making a list of children कि इसको guava पसंद है, इसको banana पसंद है, इसको apple पसंद है, and we made a table. ठीक है? कईयों की name आपसे match भी कर रहे होंगे. Is it? So this is the information we are collecting कि apple किनको पसंद है और भी ये सारा. Isn't it taking long time? It is taking long time to see कि अच्छा इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है, कितना लंबा टाइम लग रहा है, ठीक है, लिखने में, पूछने में, लिखने में. So what is the shortest way that what we can do it कि जो हमारे पास fruits हैं उनकी हमने information जो है, just a minute. We have written the information about your class in this form. We wrote the fruits banana, orange, apple, guava. ठीक है, जो जो fruits हमने oral पूछे थे उनकी हमने list बना ली. Then we made tick mark over here कि banana कितने students को पसंद था, 8 students को, orange 3 students, apple 5 students like, guava 4 students like. तो we came to know कि कितने 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 स्टूडेंट्स को कौन सा फ्रूट जो है लाइक करते हैं वो. एंड व्हेन वी गो फॉर पिकनिक वी कैन थिंक ऑफ कि मोर चिल्ड्रन दे लाइक बनाना, तो बनाना इज अ फेवरेट फ्रूट फॉर मेनी चिल्ड्रन विच इज लाइक बाय मेनी. तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि बनाना इज अ फ्रूट इजी टू ईट एंड लाइक बाय मेनी चिल्ड्रन. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई. लेट अस सी मोर. ठीक है, अब ये जो टेबल आपने टिक मार्क देखा है, व्हाट इज द अदर वे टू डू? I have put tick mark over here. आपके पास और इंफॉर्मेशन है कि हमें किस और वे से हम कर सकते हैं? यस बेटा, लोटस सेक्शन फर्स्ट गर्ल. यस, व्हाट इज द अदर वे टू एक्सप्रेस इट? बार ग्राफ, पाई चार्ट. बार ग्राफ, वेरी गुड. यू हैव लर्न मैथमेटिकली कोई सिस्टम होना चाहिए. ये तो ओनली टिक मार्क लगाए हुए हैं, कोई डॉट्स भी लगा सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए. तो मैथमेटिकली आपको एक सिस्टम दिया हुआ है. थैंक यू बेटा, सिट डाउन. Can you tell me for 5 number what we put? How many sticks we put and how we put? What is the method of putting it? If you want to represent 5, कैसे represent करेंगे उसको? How many is that tally marks I should draw? 1, 2, 3, 4. Then fifth is cross like this. You have learned in this way? Yes, very good. This is the one way. This is a proper mathematical way जो आपको सिखाया जाता है. ठीक है, universal way. Very good, beta. Sit down. So this is the information you are representing.
नहीं तो क्या होगा, कोई इसको टिक मार्क से रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई क्रॉस लगाएगा, कोई डॉट्स लगाएगा, कोई पिक्चर्स ड्रॉ करेगा. ओके, सो यूनिवर्सल थिंग विच इज टोल्ड टू एवरीबडी इज which is in the form of formula is that you have to put the tally marks and count and tell. ओके, 8 के लिए यू नो 5 के बाद 6 7 8, जैसे 4 पे आओगे यू विल क्रॉस इट. ठीक है, 4 के बाद वाला. सो दिस इज द वे यू रिप्रेजेंट. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द टेली मार्क्स टेबल. एक तो आपका ये मेथड हो गया. ठीक है, व्हाट इज द अदर वे? और क्या मेथड होता है आपका? वन अदर वे इज योर पिक्टोग्राफ, right? This is a pictograph which is giving you information in the form of picture, right? This information is about mode of traveling to school and number of students. कि आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स है, what is the mode of traveling from home to school and school to home. ठीक है, कोई साइकिल से आता है, कोई पेरेंट्स के साथ आता है, कोई स्कूल बस में आएगा, कोई ऑटो में आएगा, कोई कार में आएगा, कोई अपनी वॉकिंग आएगा who was nearby. So there is a lot of information we are getting कि how the children commuting from home to school or school to home. सबके अपने अपने वेज है ना आने के. ठीक है, जिसका घर पास होगा दे आर कमिंग वॉकिंग ऑल्सो, who are far off they are coming by school bus also maybe, or maybe with their parents. So this is the mode of transport we have written here. Private car means अपनी कार पे आ रहे हो, या पब्लिक बस में आ रहे हो, स्कूल बस में आ रहे हो, साइकिल पे आ रहे हो, या फिर वॉकिंग आ रहे हो. So this information we are getting not by tally marks, not by tick marks. We are putting faces over here. अपनी पिक्चर हमने एक बना ली कि one smiley face is depicting me one student. ठीक है, दिस इज द इंफॉर्मेशन यू हैव रिटन हियर. तो जब भी आप पिक्टोग्राफ ड्रॉ करोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट कि मैंने जो पिक्चर बनाई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन कि वन स्माइली फेस इज शोइंग मी वन स्टूडेंट. ओके, नाउ you can tell me, everybody look straight and count. Can you see this picture better? Everybody can see these circles, smiley faces. Everybody can see. Please count and tell me how many students were there जिनकी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है. क्या आपको पिक्चर से ये पता चल सकता है कि कितने स्टूडेंट्स थे वहां पे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर जिनकी इंफॉर्मेशन हमने पिक्टोग्राफ में लिखी है? प्लीज काउंट एंड टेल मी. अपनी अपनी काउंटिंग करो. डू इट योरसेल्फ. कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन काउंट हियर ऑल्सो. एवरीबडी माइंड में करो. आई विल आस्क यू. Very good. Lotus section. Sandhu. Harsirat Kaur Sandhu. Okay, Harsirat Kaur. Lotus section, Harsirat Kaur. Is she there? No? Okay. Nimrat Kaur. Lotus section. Nimrat is there. Nimrat, can you tell me how many students were there in total जिनकी information हमने यहाँ पे बनाई है? How will you come to know? कैसे पता चलेगा आपको? By? नहीं, पिक्टोग्राफ से, इस पिक्चर से आपको पता चल सकता है कि कितने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन हमने लिखी है. पूरे स्कूल की लिखी है, या फिर किसी क्लासरूम की लिखी है, या फिर 50 स्टूडेंट्स की लिखी है, या 25 की लिखी है, 30 की लिखी है? कैसे पता चलेगा? को काउंट करोगे. इज इट? काउंटिंग करोगे कि यहाँ पे दे आर सेलिंग कि वन फेस इज शोइंग यू वन स्टूडेंट. इट मीन्स वी कैन काउंट इट 1 2 3 4. We can say कि 4 students are here. 1 2 3 4 5 are here. Okay, like this. This is the way we will count. Please sit and count. Sit down. Who have counted all the faces? Raise your hand. From the picture, who have counted? Very good. Last girl, daffodil section, middle row. Very good.
प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टेल मी यहां से हमें कितने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है? टोटल, यस। अच्छा, इट मीन्स आपने काउंट नहीं किया अभी, है ना? ओके, कौन सा काउंट किया आपने? यू वर रेजिंग योर हैंड ना? यू वर टेलिंग मी व्हाट? फर्स्ट वाला, फर्स्ट तो ठीक है, 4 हो गया, ये 5 हो गया। व्हाट इज दिस? ओके, इसका बता दो मेरे को। स्कूल बस वाले कितने हैं? कैन यू काउंट ओवर हियर बेटा? 7. Let us see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. There are 11 for school bus. Okay, sit down, beta. Sit down. From daffodil section, first girl. Both of you are raising your hand. First girl, please come forward. Yes, middle row. Please tell me total. Have you counted all? Mic on kar lo, beta. 30. 30. I think they are 30. Who have counted as 30 total? Please raise your hand. Yes. Very good. You are right, beta. You are right. Sit down. So you have to take an, you know, डाटा हैंडलिंग में आप क्या स्टडी कर रहे हो? आप ये स्टडी कर रहे हो कि हमें पिक्चर को देख के कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज कि हम आपकी क्लास में आए, काउंट करें, एक एक बच्चे से पूछें कि आपको कौन सा फ्रूट पसंद है या फिर आप कैसे आते हो। फ्रॉम योर डाटा, ये जो आपने पूरा टेबल बनाया है, यहाँ से वी गेट एन इंफॉर्मेशन कि ज्यादा स्टूडेंट जो है वो स्कूल बस से आते हैं, ठीक है। सबसे कम स्टूडेंट्स जो है वो साइकिल से आते हैं, देयर आर ओनली 3। ओके, एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 7 है। आपको उनके नंबर से कंपैरिजन हो रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन कम बाय, मैक्सिमम चिल्ड्रन दे कम बाय स्कूल बस, मिनिमम चिल्ड्रन दे कम बाय साइकिल। अगर मैं आपको बोलूं कि दिस इज अ टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने एक यहाँ पे पिक्टोग्राफ बनाया हुआ है, यू राइट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आप लिखो, तो आप कितनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग यू टोल्ड कि मैक्सिमम चिल्ड्रन कम बाय स्कूल बस। सेकेंड इंफॉर्मेशन यू रोट कि मिनिमम चिल्ड्रन दे कम बाय साइकिल। और इंफॉर्मेशन क्या लिख सकते हो? कैन यू टेल मी मोर? This is a data, this is a info, this pictograph is giving us information about 30 students. ठीक है, 30 स्टूडेंट्स की हमने जो इन्फॉर्मेशन है एक क्लासरूम की, ये हमने कलेक्ट करके यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो आपको जो ऑब्जर्वेशन दिख रही है ये अपनी आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपकी इंटेलिजेंस है कि आप गिवन पिक्चर को क्या रीड कर रहे हो, व्हाट इंफॉर्मेशन यू आर राइटिंग अबाउट इट। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इज इट इंटरेस्टिंग कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, आपको खुद अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हो कि मेरे को ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, आई कैन राइट अबाउट दिस, आई कैन मेक अ स्टोरी 3 सेंटेंसेस में, 4 सेंटेंसेस में, 5 सेंटेंसेस में, आई कैन राइट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। ओके, लेट अस सी मोर बेटा हाउ दिस चैप्टर इज इंटरेस्टिंग। लेट अस सी मोर पिक्चर्स। यू कैन सी हियर अ कबर्ड हैज 5 कंपार्टमेंट्स। कबर्ड हैज 5 कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स मीन्स उसमें कबर्ड में आपकी शेल्स बनी हुई है, 1, 2, 3, 4। लाइब्रेरी में भी आपने देखा होगा, ठीक है, आपकी कबर्ड में जो शेल्स बनी होती है उनको हम कंपार्टमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, अ रो ऑफ स्कूल बुक्स, बुक्स इज अरेंज्ड, उसमें बुक्स अरेंज की गई हैं, एंड द डिटेल्स आर इंडिकेटेड इन द एडजॉइनिंग टेबल। दिस इज द टेबल। आपको फिर से एक इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि एक तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, स्टार लगा दो। ठीक है, अपनी अपनी नोटबुक में सारे अपने सेंटेंसेस लिखो, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, स्टार्ट राइटिंग। वेरी गुड। Picture is in front of you, pictograph is in front of you. Please write down sentences in your notebook. What information you get from this picture? Very good. Start writing. Apply your own knowledge. Don't ask each other. Don't see in each other's notebook. ठीक है, you are intelligent children, all grown up.
अप्लाई योर ओन नॉलेज, कॉमन सेंस लगा के अपनी सेंटेंसेस लिखो और आई विल बी आस्किंग यू सून. वेरी गुड. Whatever, जो भी आपको नंबर 1 पे ये दिखाई दे रहा है लिख दो. नंबर 2, नंबर 3, short sentences quickly. Very good. Hindi, English, whatever language you want to write down. किसी का पंजाबी लैंग्वेज फेवरेट है तो पंजाबी में भी लिख सकते हो. ओके, आई वॉन्ट टू नो योर नॉलेज ओनली. वेरी गुड. Very good. I'm giving you 2 minutes quickly. अपने आप, आई डोंट थिंक किसी से पूछने की जरूरत है आपको. रो सेक्शन, हसरत कौर. Yeah, Hasrat was writing so sincerely. Please come and tell me what have you written. कुछ लिखा है, कोई सेंटेंस आपने? वेरी गुड, जल्दी से बता दो. अभी तो शुरू कर रहे थे. अभी सोच रही हो? यस. ओके ओके, कोई बात नहीं. ओके, इट्स फाइन. रो सेक्शन से एनी अदर चाइल्ड जिसने फर्स्ट एक सेंटेंस लिख लिया हो. ओके, लोटस सेक्शन. Still thinking. ओके, डैफोडिल सेक्शन. इन्होंने एक सेंटेंस लिख लिया हो कुछ ये पूरी पिक्चर के बारे में, कोई एक सेंटेंस लिखा हो. ओके, सनफ्लावर. यू आर ब्रेव चिल्ड्रन. ओके, ठीक है. अगर नहीं लिखा मेरे को मेंटली ऐसे ही बता दो, ओरली टॉक टू मी. मत लिखो, कोई बात नहीं. टॉक टू मी कि मैम मुझे ये दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में. वेरी गुड. अब तो जल्दी से आ जाओ. यस, सनफ्लावर सेक्शन. वेरी गुड. Sunflower section, who is coming? Roll number 11. 11, roll number 11, sunflower section. Talk to me. मुझे oral बता दो. मत लिखो, कोई बात नहीं. I'm not asking you in serious way. Tell me कि आपको क्या information मिल रही है. आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? बेटे जो दिखाई दे रहे हैं आप बताओ. अपनी बोलो कि अच्छा मेरे को मैम फर्स्ट शेल्फ में दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट वाली जो रो है उसमें 4 बुक्स दिखाई दे रही है मेरे को. कैन यू सी 4 बुक्स इन दैट? ओके, लोटस सेक्शन, फर्स्ट गर्ल. बेटा प्लीज कम. लोटस सेक्शन, फर्स्ट गर्ल, मिडिल रो. वेरी गुड, जल्दी से आ जाओ. Yes, good, good. Lot of time है ना. ओके चलो, let me say. मैं बताती हूँ आपको, आप सुनो मेरे को ध्यान से. Everybody look straight. Leave it. जो कोई लिख रहा है छोड़ दो उसको. See, here you are getting an information that one picture of one book is representing one. Counting me, it is showing one picture. ठीक है, Daffodil, now listen to me. Daffodil, look straight and listen to me. One picture is showing one book. You are counting one book. And then you can see that in first row there were 4 books. In second row there were 1, 2, 3, 4, 5 books. Okay. And in third row there were 2 books. And what I can see from the picture, ये तो चलो काउंटिंग होगी, आपने काउंट कर लिया कि रो 1 में कितनी है, 2 में कितनी है, 3 में कितनी है, एक ये इन्फॉर्मेशन होगी. एक और इन्फॉर्मेशन आपको आइडिया आ रहा है अभी किसी के माइंड में?
एक और इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी क्या मिल रही है कि सबसे कम जो बुक्स हैं, वेरी मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स आर लाइंग इन विच रो? थर्ड रो। कैन यू सी ऑल ऑफ यू कि थर्ड रो में सबसे कम बुक्स हैं? रेज योर हैंड, कैन यू सी हियर? यस, दिखाई दे रहे हैं आपको? वेरी गुड। मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स आर लाइंग इन विच रो? टेल मी, फटाफट से बता दो देख के। हैंड्स डाउन। कौन सी रो में आपको सबसे ज्यादा बुक्स दिखाई दे रही हैं? रो 4. Can you see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? There are 8 books which are in this. Okay. So such kind of information you are getting over here. Let us see more pictures. अब ये तो हुआ पिक्टोग्राफ, एक काइंड ऑफ डाटा जो था हमने कलेक्ट करके पिक्टोग्राफ में उसको रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है. लेट अस सी मोर. See here, you can see beautiful, colorful bars over here. जैसे चॉकलेट बार होती है, चॉकलेट बार, rectangular, right? This is also a bar. ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bars are there which are depicting us about Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday तक की पूरे वीक की हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि how many students are there, जिनके मंडे को बर्थडे आते हैं, कहीं जिनके ट्यूसडे को आते हैं या फिर थर्सडे को आती हैं. ठीक है. तो हमने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमने एक बार ग्राफ ड्रॉ किया. तो ये बार ग्राफ, हैव यू डन इट इन क्लास? क्लास में किया आपने बार ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ? यस. ओके, गुड. एंड कैन यू टेल मी वन थिंग कि बार ग्राफ में जो इंफॉर्मेशन होती है, समथिंग यू ड्रॉ ऑन द एक्स एक्सिस, कुछ आप सुनो यहाँ एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हो जिसको हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, एंड समथिंग यू ड्रॉ हियर ऑन द वाई एक्सिस. तो कैन यू टेल मी कि आपको कैसे पता चलता है कि हमें हॉरिजॉन्टल में क्या लेना है, कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है, और वर्टिकल में कौन सी लेनी है वाई एक्सिस पे? डू यू नो? क्या आपने सीखे जब आपने बार ग्राफ ड्रॉ करना सीखा, क्या आपको पता चलता है कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है और वाई एक्सिस पे क्या इंफॉर्मेशन लेनी है? हाथ खड़ी करो, किस किस को पता है कैसे सोच के आप बार ग्राफ बनाते हो? हाँ बताओ बेटा. वेरी गुड. सनफ्लावर सेक्शन. यस, फर्स्ट बॉय, प्लीज आ जाओ. प्लीज टेल मी व्हाट हैव यू लर्न. कैसे पता चलता है आपको? Everybody listen to him. He is telling a very important thing. हाँ जी बेटे. और मैम मैम ओके, वो वर्टिकल पे आती है. ओके, गुड. सिट डाउन. गुड. एवरीबडी लिसन हियर. काफी बच्चों को पता नहीं है ये चीज कि कैसे आप सोच के, क्योंकि आपको तो एक टेबल दिया होता है, टेबल को देख के आपको कैसे पता चलता है कि नीचे हमने कौन सी चीज लेनी है. प्लीज लुक हियर ऑल ऑफ यू, सी व्हाट यू डू. दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट थिंग. कि इंडिपेंडेंट मतलब कि दे आर जस्ट नंबर ऑफ डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. ठीक है. ये जो चीज है ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, इट डिपेंड्स कि मंडे को कितनी है, हमें क्वांटिटी पता चल रही है. हाउ मेनी आर on Monday, how many students have birthday on Tuesday, how many students have birthday on Wednesday, and so on. ठीक है. तो हमें क्वांटिटी जो है वो सारी हमारी जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है, इंफॉर्मेशन जो हमें पता चल रही है, क्वांटिटी जो कि डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? डेज पे डिपेंड करती है कि वो डे कौन सा है. ठीक है. दिस इंफॉर्मेशन, ये जो हमें पता चल रही है, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस. और जो नीचे है दैट इज इंडिपेंडेंट. अभी तो इंडिपेंडेंस डे होके चुके हैं, आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंट चीज क्या होती है. सबको पता है ना इंडिपेंडेंट? जिसको किसी का फर्क नहीं पड़ता, अपने वो डेज हैं तो है ही है. मंडे ने आना है तो आना ही है, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, राइट? दे डोंट डिपेंड ऑन एनी कंडीशन. ठीक है. डेज विल कीप पासिंग.
एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ऐसा तो नहीं कभी हुआ कि ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद आ गया या फिर थर्सडे वेडनेसडे से पहले आ गया। इट नेवर हैपेंस लाइक दिस। ये जो नंबर ऑफ डेज है वो इंडिपेंडेंटली चलते जाते हैं, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट जो चीजें हैं, जो भी आपको इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन दी होगी वो सारी हॉरिजॉन्टल पे आएगी, और जो क्वांटिटी है कि हमारा डेज के हिसाब से, ईयर के हिसाब से, या फिर वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, वो सारी वाई एक्सिस पे आएगी, ठीक है। सो one thing more I want to tell you, this is the last thing I want to show you. एक बार ग्राफ्स के अलावा आपके पास ऐसे भी इंफॉर्मेशन आ सकती है जिसको हम बोलते हैं इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक इज जस्ट लाइक दैट ओनली, जैसे हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं ये उसकी तरह, ठीक है। ओनली थिंग इज कि वी आर शोइंग देम इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल पिक्चर्स। ब्यूटीफुल पिक्चर्स की फॉर्म में हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इट इज शोइंग अस इन्फोग्राफ, ठीक है। जैसे आपको सपोज माउंटेन्स की इंफॉर्मेशन देनी है, माउंटेन्स की इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप माउंटेन्स की फॉर्म में अपना ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो और उनको कलर कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको सपोज काइट की इंफॉर्मेशन लेने की, विच काइट, सपोज 5 पीपल आर फ्लाइंग द काइट, आपको देखना है कि काइट किसकी हाइट जो है वो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस पे कौन सी है, तो वो देखने के लिए सपोज आपको इंफॉर्मेशन, यू कैन ड्रॉ इट इन द फॉर्म ऑफ काइट ऑल्सो, ठीक है। आपका जो ग्राफ है वो काइट की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि तुम कौन सी पिक्चर जो है ब्यूटीफुली उसको ड्रॉ कर रहे हो, उसकी शेप लेके। ये शेप हमने खुद चूज करनी है कि हम इसको इस फॉर्म में, माउंटेन्स को हमने ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो वो हमारा एक इन्फोग्राफिक बन गया। नाउ उसका चेंज हो गया, इट इज सेम एज योर बैकग्राउंड। इज इट फाइन? ओके, नेक्स्ट टाइम वी विल बी डूइंग वर्कशीट अबाउट दीज ऑल। ये सारी इंफॉर्मेशन जो आज आपने सीखी है, यू विल बी यूजिंग दीज ऑल थिंग्स इन द वर्कशीट ऑल्सो नेक्स्ट टाइम। ओके बेटा, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। बाय बेटा, बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन।